Hello student, good morning. All of you इसी write पे your name and write your name and एक enrollment मैसेज number करूँ on chat box. मैसेज ओके All the student write your name and number on chat box. चलो सभी बच्चे अपना नाम और नंबर चैट बॉक्स में लिखें। एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं। अगर अब डिस्कनेक्ट हो जाए फिर भी एक बार लिख लिया है तो दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है। सो द लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 1 1 और ऑन टू उसके बारे में पढ़ा था। तो 1 1 क्या है और ऑन टू क्या है? चलो अनम्यूट योरसेल्फ। हु इज अनम्यूट? चलो लास्ट में 1 1 और ऑन टू किसको पता है? व्हाट इज अ 1 1 एंड व्हाट इज अ ऑन टू? पार्थ कोठारी। चलो पार्थ 1 1 અને 1 2 ની ડેફિનેશન તારા વર્ડમાં સમજાવ। पार्थ, the student, you listen my voice carefully or not? You are able to listening? અવાજ આવે છે કે નહીં? આવે છે મેમ આવે છે તો ચલો પૂજન। What is the 1 1 and on 2? ચલો કોને યાદ છે 1 1 અને on 2 માં શું ભણાવ્યું હતું? What is मैम the वन वन meaning of याद the છે 1 1 and on 2? હા તો ચલો 1 1 બોલ પરમ। function in which the column 1 corresponds to the exact number of the column 2 is known as 1 1. Don't say is a column 1 and column 2. Say domain and codomain because we specially give their name. Okay. Okay, so say column not domain and codomain. Okay. Right? So there are the two type of the function we studied before in previous lecture. So we will continue this topic. હલો મેડમ हाँ बोले बेटा। તમે પાછળની નવી એક પીપીટી શેર નથી કરી હજી ગ્રુપમાં કઈ પીપીટી? આ જે કન્ટિન્યુ દરરોજ હલાવો એ મોકલ્યો છે ને ગ્રુપમાં હમણાં નથી આવી બે લેક્ચર ગ્રુપમાં નથી બેટા, મેં પોર્ટલ ઉપર મૂકી દીધી છે। ગ્રુપમાં શું છે કે બીજા સ્ટુડન્ટને કંઈક અલગ ભણાવતા હોય છે
તો બધાની ડેફિનેશન થોડી ના તો એકવાર મૂકી હતી ને એટલે પણ મેં કીધું ને હવે પોર્ટલ ઉપર હશે તો પોર્ટલ ઉપરથી અપડેટ કરી લેવાની. એ હા ભલે ભલે. ચલો ચાલુ કરી દઈએ હવે. So the type of the function, the first type is a one-one function. One-one function ને આપણે શું કીધું હતું? Set A. એને પણ જે પણ નામ દો, the set A have a different image from B. B ની જે પણ ઇમેજ મળશે એ એક જ હશે સામેના સેટની અંદર. So A and B both have a single element related with a single element. This is an example. What is a function? Every element have a single element image. So if we start with the set A, so one has a pre-image C, two pre-image is a 1 and 3 pre-image is D. Every element has single pre-image. And the second figure is not a 1 1 because the C have a 2 image 3 and 4. So it is not a possible. In order pair we can write the 1 1 and 1 2 like this. In short, if a element in B will be repeated, then it is not a 1 1. Always remember, in the order pair, जब भी हम ऑर्डर पेयर बनाइए तब सेट बी का एलिमेंट अगर रिपीट हो तो वो 1 1 नहीं है. तो कुछ एग्जाम्पल भी गिने थे, ये सब कुछ सोल्व कर दिया था, ये आप लोगों को होमवर्क भी दे दिया था. उसके बाद ऑन टू के डेफिनेशन बोले थे. ऑन टू का मीनिंग है if you have a function, first of all you check the given term is a function or not, then you go the next step. The second step will be the check domain and codomain, range and domain both are same, then the function is on to. Then how can we find the range? If every element of that set A is related with the B, that relation, just to take a that relation is a collection of the range. So range and codomain both are same. तो रेंज અને कोडोमेन दोनों एक ही हो तब इस फंक्शन को हम ऑन टू कहते हैं. ये कुछ उसके एग्जाम्पल थे, 1 1 और ऑन टू थे. यहाँ तक हमने बात की थी. हमने कुछ लास्ट लेक्चर में डायग्राम की बात की थी, तो उससे पहले मैं 2-3 आप लोगों को एग्जाम्पल दे दूँ कि जिसका डायग्राम कैसे करना है वो पता चल जाए. तो देखो ये एग्जाम्पल आप लोगों में से कितने चेक किए हैं कि 1 2 है या नहीं है? किसी ने किए होमवर्क में? यस मैम. फिर आप हर एक फैकल्टी जैसे करता है ना, ये आप लोगों को अपडेट करने के वो मैं बोलूँ, इससे अच्छा है कि आप लोग अपना काम रेगुलर कर लो. ओके, हर बार कर ही लेना. छोटे बच्चों की तरह ऐसा आपको मुझे कहना ना पड़े कि कर लो, अपने आपके लिए अच्छा है. सो द लास्ट लेक्चर यहाँ तक चला था. उसके बाद ये 1 2. अब इस क्वेश्चन में देखो, आपको ये प्रूव करना है. क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8, सो दैट द फंक्शन f of n to n and the function is a 2x is a 1 1 but not a on to. ये फंक्शन 1 1 है बट on to नहीं है, ये प्रूव करना है. चलो कैसे करेंगे? अभी तो मैंने ये गिना है, 2-3 एग्जाम्पल आप लोगों को ही पूछूंगी चेक करने के लिए. आपको कोई फंक्शन गिवन होगा, तो सेट गिवन होंगे, उसको यूज करके आप लोगों को चेक करना है कि आपका फंक्शन 1 1 है तो ओके, नहीं है तो क्यों नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, सब कुछ चेक करना है. कैसे आंसर को स्टार्ट करें वो देखो. सब लोग ये स्क्रीन पे ही देखो. बहुत इजी एग्जाम्पल है, आपको प्रूव करना है द गिवन फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, राइट. देखो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. हमारा फंक्शन n पे n से n तक का है. सेट A और B दोनों n है, मीन्स के कलेक्शन ऑफ द पॉजिटिव नंबर 1 से लेके इनफाइनाइट तक. और हमारा फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 2x. अब सेट n दोनों ही n है तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, n एक बार लिखा चलेगा. अब n में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? 1 2 3 एंड 4 टेंस टू इनफाइनाइट. कितने सारे? तो यहाँ मैंने पहले 4 ही एलिमेंट बताए हैं.
देखो n में से पहला एलिमेंट लो, तो फर्स्ट एलिमेंट इज 1, उसको फंक्शन में रखो, x की जगह 1 बनेगा, देखो 1 क्या मिलता है 2। सिमिलरली n में से सेकंड एलिमेंट लो, उसको भी फंक्शन में रखो, x की जगह 2, सो 2 इंटू 2 इज 4। ऐसे हमने चारों के चारों एलिमेंट रखे, सिर्फ 4 एलिमेंट रखे। उसके बाद 5 6 7 8 कितने भी नंबर आते हैं, हम 2 3 नंबर लेके ही यहाँ स्टॉप कर देंगे और सीरीज को इनफाइनाइट बताएंगे। यहाँ तक समझ आ गया? पहले हमारा जो फंक्शन था क्वेश्चन में वो लिख लिया, उसकी नंबर उस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो लिख लिए, उस एलिमेंट का यूज करके हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली, और पर उस सेट में इनफाइनाइट नंबर है इसलिए हमने 2 3 ही स्टेप किए, उसके बाद छोड़ दिया। क्लियर? अब उसके बाद हम लिखते हैं डोमेन एंड कोडोमेन। अब डोमेन किसको कहते हैं? सिमिलरली जो पहला सेट होता है ना ए और बी, हम ए टेंस टू बी हर बार जाते हैं, यहाँ एन टू एन है, तो डोमेन पहला और कोडोमेन दूसरा। तो हमारी डोमेन और कोडोमेन दोनों एक ही है, डोमेन में एन, कोडोमेन भी एन दिख रहा है सबको, ये डोमेन और कोडोमेन। तो डोमेन के एलिमेंट है 1 2 इनफाइनाइट, कोडोमेन में भी सही है वही एलिमेंट है, बट देखो उसका फंक्शन क्या मिल रहा है। जो पहला एलिमेंट लिया 1, उसके साथ 2 कनेक्टेड है, तो मैंने पहली पेयर निकाली 1 2, दूसरा एलिमेंट 2 और 4, तो हमारी दूसरी पेयर है 2 4, थर्ड 3 एंड 6 एंड फोर्थ 4 एंड 8। अब फिफ्थ नंबर की क्या मिलेगी? चलो फिफ्थ नंबर की अगर ऑर्डर पेयर निकाले तो क्या मिलेगी? किसी को पता चला मैं किसकी बात कर रही हूँ? 10 10। सुनाई और दिखाई दे रहा है ना? हाँ मैडम पूरा 10 नंबर बोलो बच्चा, ऑर्डर पेयर पूरी, आप पूरी ऑर्डर पेयर बोलो। जैसे कैसे 3 और 6 दोनों एक नंबर हुए ना, M4 है, तो इसके बाद क्या होगा? 5 कोई और भी बोल 10। सकता है 5 और 10, और उसके बाद उसके बाद मैडम 6 और 12। 5 और 10, राइट, सही है। कैसे हम कंटिन्यू जा सकते हैं, पर आपको कंटिन्यूसली नहीं जाना, 2 3 स्टेप लिखने हैं रेंज फंक्शन के, उसके बाद उसको छोड़ देना है। अब आई, हमने डोमेन लिख लिया, कोडोमेन लिख लिया, हमने एक फंक्शन पे लिख लिया उसके ऑर्डर पेयर में। अब आती है रेंज की बारी। तो पहले तो देखते हैं रेंज क्या है। तो जो भी सेकंड सेट होते हैं ना बी कोडोमेन, उसके जो एलिमेंट यूज हुए उसको हम रेंज कहते हैं। मीन्स के ये जो 2 4 6 8 10 टेंस टू इनफाइनाइट वो सभी क्या हो गए इसकी रेंज। आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिनना है आप समझ लो, एक क्वेश्चन आ जाएगा, सब क्वेश्चन आ जाएंगे। पहले हमने एक फंक्शन लिया, हमारा एन टू एन का है, हर बार जरूर नहीं कि एन टू एन हो, एन टू डब्ल्यू हो सकता है, जेड टू आर हो सकता है, कुछ भी हो, पर हम यहाँ दोनों इक्वल है इसलिए एक ही सेट लिखा है। उसके 3 4 एलिमेंट लिए फंक्शन में रखे, उसका रिलेशन निकाल लिया। अब डोमेन और कोडोमेन की वैल्यू लिख ली। उसके बाद आई फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन एक ऑर्डर पेयर बना रहा है, 1 के साथ 2 रिलेटेड है, 2 के साथ 4, तो ऐसे एक ऑर्डर पेयर बना ली। उसके बाद हमने निकाला रेंज, रेंज किसको कहते हैं? जो फंक्शन में ऑर्डर पेयर होते हैं ना उसके पीछे सेकंड बाय कोऑर्डिनेट को हम उसकी रेंज कहते हैं। तो रेंज भी इतनी सारी आ गई। अब इतना हर बार हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को करना है। फंक्शन निकाल लिया, डोमेन और कोडोमेन के एलिमेंट लिख लिए, उसके बाद ये फंक्शन ले लिया, फंक्शन यहाँ से मिलता है और फंक्शन को यूज करके उसकी रेंज निकाली। अब यहाँ कहा है f इज 1 1, क्यों? देखो हमने जो पहला सेट लिया है ना, हर एक एलिमेंट के साथ एक ही एलिमेंट है। देखो यहाँ आप जहां भी लास्ट तक जाओ कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। यस बच्चा, क्या हुआ? कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन टेल मी। You have any problem, ask me. If you have any problem then write.
इसको 1 1 क्यों कहते हैं कि देखो हम अब हमें आप लोगों को ये इतना ही देखना है, ये बना लिया, उसके बाद ये 4 पर ही फोकस रखना है। 1 1 में हम क्या देखेंगे कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, एक एलिमेंट की एक इमेज मिलनी चाहिए। तो देखो हर एक एलिमेंट की 2 की एक ही इमेज मिल रही है, पीछे के कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे, तो दैट इज 1 1। अब ये ऑन टू नहीं है, क्यों? ऑन टू की हमें डेफिनेशन क्या कहते हैं? कोडोमेन और रेंज इक्वल होनी चाहिए। अब देखो ये कोडोमेन में कितने एलिमेंट्स है? 1 से लेके टेंस टू इनफाइनाइट तक। रेंज में क्या है? 2 3 6 10। यहाँ 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 है, कोई भी ओड नंबर नहीं है, तो कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट अ ऑन टू। क्लियर? ये प्रूफ हमने किया, इट इज अ 1 1 बट नॉट ऑन टू। अब इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोलो। हेलो स्टूडेंट, ये समझ आ गया? जयराज, अब जयराज इतनी देर क्यों होती है तुम्हें? चलो, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मैं नेक्स्ट पे जाती हूँ। चलो सेकंड क्वेश्चन। मैम कोई प्रॉब्लम यहाँ भी देखो, नहीं है, आ गया समझ में कैसे करना है। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन देखो। लेट सेट ए, हमें एक ए सेट दिया है, द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10 इन द स्कूल। अब फंक्शन जा रहा है ए टू एन तक। ए is a collection of the student, 50 student who is studying in the 10th class. n सेट तो हमें पता ही है n क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और हमें फंक्शन एक डिफाइन किया है कि f ऑफ x में ऐसे नंबर लिखो कि इट इज अ रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के रोल नंबर है। तो आपको चेक करना है, ये 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। कैसे? अभी पहला जो एग्जांपल किया ना उसी टाइप का सेम टू सेम है। पहला हमने उस क्वेश्चन में क्या लिखा था? फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, फंक्शन की फॉर्मूला और सेट की वैल्यू। तो यहाँ भी यही किया है, फंक्शन लिखा वो तो गिवन ही होता है, f ऑफ a टेंस टू n। उसके बाद सेट a की वैल्यू, सेट a की वैल्यू क्या है? पहले ही यहाँ हमें गिवन है, सेट A is a set of 50 student। 50 स्टूडेंट के n 50 स्टूडेंट उस सेट में है। तो 50 स्टूडेंट, आपके क्लास में 25 स्टूडेंट है, तो आप कोई सेट में लिखो तो आप लिखोगे 1 2 3 4 10 to 25 के 25 तक के स्टूडेंट है। तो यहाँ पर 50 स्टूडेंट है, तो मैंने ए सेट में लिख लिया कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है? 1 2 3 10 to 50 स्टूडेंट। तो ए सेट में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हुए? 50। इसको हमने नंबर के फॉर्म में लिख लिया। अगर 15 होते तो 15 लिखते, 25 होते तो 25 लिखते, 100 होते तो 100 लिखते। वो जो भी नंबर गिवन है हमने नंबर में लिख लिया। अब आप ए सेट में कभी माइनस नंबर नहीं लिख सकते, बिकॉज स्टूडेंट की कुछ स्ट्रेंथ होती है, तो 0 भी नहीं लिखना है, 1 से ही कुछ नंबर स्टार्ट हो गए ना, इसलिए हमने ए में लिख लिया है 1 से लेके 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट। सेकंड आई बारी सेट एन की। एन में तो पता ही है कौन कौन से नंबर आते हैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक। अब हमारा फंक्शन उन लोगों ने गिवन है कि रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के रोल नंबर इन एक्स फॉर्म। अगर समझ में इतना हमारे पास गिवन ही है। अब आती है फंक्शन की बारी। हर बार पहला एलिमेंट पहले सेट में से लेंगे हर बार, तो ये उसका पहला एलिमेंट है 1, हमने फंक्शन में रखा। यहाँ के क्या कर रहा है कि अगर हम एक नंबर ना के, अगर देखो आप 15-16 बच्चे हो अभी और 25 बच्चे हो, आपका रोल नंबर आगे पीछे है, हर एक का एक तो रोल नंबर होगा ना, एक ही स्टूडेंट के 2 रोल नंबर नहीं होंगे। तो यहाँ मैंने अपने तरीके से, मैं पहला जो मैं स्टूडेंट का नाम ले उसका रोल नंबर 1 है, यहाँ लिख लिया। आप फंक्शन ऐसा डिफाइन करके पहले का रोल नंबर 1, दूसरे का रोल नंबर 2, फिर थर्ड का रोल नंबर 3, ऐसे चलते चलते हम 49 के रोल नंबर 49 हो गया, 50 के रोल नंबर 50। फंक्शन बना लिया। फंक्शन को अब ऑर्डर पेयर में लिखते हैं।
यहाँ एक ब्रैकेट करना, तो 1 के साथ कौन रिलेटेड है? 1, 1 के साथ 2 रिलेटेड है, 3 के साथ 3 एंड सो ऑन, 49 के साथ 49। तो डोमेन क्या मिली? डोमेन तो हमारा ए सेट है 1 से लेके 50 तक का। कोडोमेन क्या मिली? ए एन सेट 1 से लेके इनफाइनाइट तक। अब उसकी रेंज क्या मिली? जो फंक्शन है उसका सेकंड कोऑर्डिनेट, तो 1 2 3 टेंस टू 50। अब देखो ये 1 तो है, हर एक एलिमेंट के साथ उसका एक एक एलिमेंट कनेक्टेड है, बट ये ऑन टू नहीं है। क्यों ऑन टू नहीं है? कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, इसलिए। आ गया समझ में? हेलो, ओके मैम। पक्का सबको? सिर्फ हमें ओ, ये नंबर ही लिखने हैं। ओके, अगर कोई फंक्शन अलग लिखा होता है तो उस पर हम अप्लाई करते हैं। आपको तो सिर्फ ऑर्डर पर कैसे बनानी है, डोमेन कैसे फाइंड करना है, कोडोमेन कैसे लिखनी है, रेंज कैसे लिखनी है, वो आ जाए बस। उससे ज्यादा यही एग्जाम्पल में हमें कुछ नहीं सीख करना है। आगे सबको क्लियर? बाद में कुछ ना, अगर स्लाइड चेंज कर दूं तो कि मैम ये नहीं समझ में आता, फिर से कर दो तो। ओके, वेरी गुड, अच्छा है। चलो अब इस क्वेश्चन को आपको ऑर्डर पेयर में लिखना है। मेरा सिर्फ फोकस था कि आप क्वेश्चन में से डोमेन निकालना सीख लो, कोडोमेन बनाना सीख लो, ऑर्डर पेयर लिखना सीख लो और रेंज निकालना सीख लो। अब इस क्वेश्चन में आप लोग मुझे कोडोमेन बताएंगे, डोमेन बताएंगे, फंक्शन को ऑर्डर पेयर में लिखेंगे और उसकी रेंज बताएंगे। क्लियर? कितना कितना आपको बताना है? कोडोमेन, डोमेन, रेंज और फंक्शन की ऑर्डर पे। आप अगर देखना है तो एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन। आपको इतना फाइंड करना है, डोमेन, कोडोमेन, फंक्शन को ऑर्डर में लिखना है और उसकी रेंज फाइंड करनी है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों का नाम दूं या आप में से कोई भी बोलेगा? नाम दीजिए। चलो पहला पहला क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ कैसे करना है। ओके, उसके बाद आप लोगों का मैं नाम दूंगी, वही आप मुझे बताएगा। तो पहले क्वेश्चन में सुन लो कि कैसे करते हैं। पहले आया डोमेन की रेंज। अब आप कोई सेट ए और बी नहीं बोलोगे, ये पहला आया डोमेन। तो डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4। ओके, उसके बाद आता है कोडोमेन। कोडोमेन में कौन से एलिमेंट है? ए बी सी डी ई एफ। तो डोमेन और कोडोमेन लिख लिया। अब फंक्शन को ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। तो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ 1, इसकी ऑर्डर पेयर होगी कर्ली ब्रैकेट में, पहले काउंट्स में 1 ए, सेकंड काउंट्स 2 बी, थर्ड काउंट्स 3 डी एंड फोर्थ ब्रैकेट 4 सी, कर्ली ब्रैकेट ऑफ। फंक्शन को ऑर्डर पेयर में लिख लिया। उसके बाद होती है उसकी रेंज। रेंज मीन्स दैट एलिमेंट विच इज रिलेटेड विथ ए बट इन बी। बी में होने चाहिए, दैट द कलेक्शन ऑफ सेट बी विच इज रिलेटेड विथ द डोमेन। सो द कलेक्शन ऑफ बी इन रेंज, तो ये क्या होता है? ए बी सी एंड बी, ये 4 एलिमेंट आ जाएगी आपकी रेंज में। आ गया सबको कैसे बोलना है? ओके, डोमेन, ओके मैम। कोडोमेन, फंक्शन ऑर्डर पेयर में, और आपको इसकी रेंज बनानी दिखानी है मुझे। चलो अब हम इस हर एक का नाम लेके मैं पूछती हूँ कि मुझे तो पता चले कि कितने वर्क कर रहे हैं। चलो तो पहला क्वेश्चन का आंसर देंगे पूजन। चलो अनम्यूट करो अपने आप को। पूजन डोंगा।
कॉलेज स्टार्ट होने के बाद तो तू मुझे पहले ही मिलना। चलो कमलेश कुमार। कमलेश कुमार। यस मैम। यस मैम। ओके, अब ये दूसरी जो फिगर दिखाई दे रही है, इसकी डोमेन, कोडोमेन, फंक्शन कोडर पेयर में और उसकी रेंज बोलो। की डोमेन है 1 2 3 4। को डोमेन है ABCDF और उसके बाद नहीं 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 नहीं, बच्चा बच्चा, कोडोमेन क्या है पहले से बोलो। ABCDEF। ओके सही है। अब फंक्शन कोडर पेयर में लिखो। 1 B, सेकंड में 2 C, यस थर्ड सही में है। 3 D, 4 में 4 D और इसकी रेंज वेरी हो गुड। गई अब मैं इसकी रेंज। BCD। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर, वेरी गुड। थैंक यू मैम। वेलकम। चलो द नेक्स्ट, सौम्या जोशी। चलो सौम्या। બોલો બોલો મેડમ। બોલો બોલો। ચલો થર્ડ ક્વેશ્ચન, થર્ડ ની બધી વેલ્યુ લખાવો। હા, થર્ડ માં ડોમેન છે 1 2 3 4। ઓકે, કોડોમેન છે કોડોમેન। ABC। ઓકે, 1 આરે A, કોડર પેન। 1 આરે A, 2 આરે A, हाँ 3 આરે B, हाँ 4 આરે C અને અને ફંક્શન છે રેન્જ। ABC રેન્જ। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट वन, द लास्ट फिगर, गुड्डू। यस मैडम। चलो लास्ट फिगर सोल्व करो। मैडम डोमेन है 1 2 3 4। कोडोमेन यस है डी। यस। रेंज है 1 B 2 C 3 A 4 D। राइट, रेंज। रेंज है ABCD। वेरी गुड। चलो इतना आ गया आप लोगों को सबको। अब उसके बाद आप लोगों को चेक करना है कि कौन सी फिगर 1 1 है, कौन सी फिगर 1 2 है। ओके, 1 1 में हर एक एलिमेंट के साथ एक ही पेयर होगी। ऑन 2 में डोमेन, सॉरी, कोडोमेन और रेंज इक्वल होगी। तो चलो पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने ही दिया था, तो इसलिए पहले का आंसर मैं ही दे रही हूँ। तो देखो ये पहली एलिमेंट्स हम 1 1 है, हर एक एलिमेंट के साथ एक ही एलिमेंट है, तो ये 1 1 हो गई। बट ये ऑन टू नहीं है, क्यों? कोडोमेन ये पूरा है, पर रेंज कितनी है? ABCD, EF नहीं है, तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, तो 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। क्लियर सबको? यस। ओके, अब सिमिलरली ये दूसरी फिगर, दूसरी इसका फिगर आंसर में किसने दिया था मुझे? मैं कमलेश। हाँ कमलेश, तो तुम कमलेश बताओ कि सेकंड फिगर 1 1 1 2 में से कौन सी है? मैम ये 1 1 नहीं है और क्या कहते हैं 1 2 है। 1 2 ऑन भी टू नहीं है। है। हाँ राइट, ये सेकंड फिगर 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। 1 1 क्यों नहीं है? कि एलिमेंट दो एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहा है, तो पॉसिबल नहीं है 1 1 में। ऑन टू भी नहीं है बिकॉज डोमेन, सॉरी, दो कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है। अब थर्ड किसको पूछा था? सौम्या जोशी। चलो थर्ड में बताओ 1 1 1 2 में से क्या है? હા બોલો મેડમ। हाँ ये 1 1 1 2। હા चलो तार, तुम्हें कहना है ये 1 1 है या 1 2 है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? ये 1 1 है। 1 1 है, कैसे?
सही है। एक काम करो, तुम मुझे पूछ रहे हो दूसरों बच्चों को पूछ रहे हो कि है या नहीं है? તમને તમને મેં જવાબ દીધો, તમારે કેવું જ પડે ને સાચું ખોટું ઈ। એટલે તું પેલા કે 1 1 છે કે નહીં, પછી હું તને કહું તો એક આન્સર આપી દે, યસ या नो। હા મને લાગે છે। करने लागे છે। चलो 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है? एक एलिमेंट के साथ एक ही होना चाहिए, एक एलिमेंट के साथ दो एलिमेंट नहीं रिलेशन में होने चाहिए। मैम यहाँ ये देखो 1 ए, इसकी टू है। શાંતિ રાખો ને हाँ ભાઈ ये હવે। 1 1 नहीं है। चलो सुन लो, इस इक्वेशन में देखो ये 1 की ए की दो इमेज मिल रही है, 1 और 2, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर एक की एक ही इमेज होनी चाहिए तो 1 1 होगा। ये 1 એક 1 થી વધારે नहीं મળે है તો बिकॉज दो 1 2। इमेज में नहीं, पहले सुन, एक ही इमेज मिले तो ये 1 1 है। अब ऑन टू में क्या हम चेक करते हैं? कोडोमेन और रेंज इक्वल होनी चाहिए। तो देखो इसकी कोडोमेन क्या है? एबीसी, इसकी रेंज भी क्या है? एबीसी ही है। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है बट ऑन टू है। आ गया? સમજાઈ ગયું। समझा क्यों ना? चलो लास्ट फोर्थ नंबर किसको दिया था मैंने? हाँ मैडम, हाँ गुड्डू। हाँ चलो गुड्डू, अभी तुम बताओ ये 1 1 ऑन टू में से क्या है? 1 1 है मैडम। 1 1 है, वेरी गुड, ये सही है, 1 1 है। फिर ऑन टू का टर्न क्या मैडम? 1 1 तो हो गया, अब ऑन टू चेक करो है या नहीं है। 1 2 नहीं है मैडम। ऑन टू नहीं है, क्यों नहीं है? मैडम एक एलिमेंट एक ही के साथ जुड़ा है। नो नो नो, यू कंफ्यूज, तुम कंफ्यूज हो रहे हो बच्चों। देखो 1 1 का मीनिंग है एक एलिमेंट एक के साथ रिलेटेड हो। देखो ये 1 बी के साथ है, 2 सी के साथ है, 3 ए के साथ है, 4 डी के साथ है, 1 1 हो गई। अब ऑन टू में क्या करना है? कोडोमेन और रेंज इक्वल होनी चाहिए। इसकी रेंज अभी हमने तुमने ही बोली थी ना, ए बी सी डी। हाँ तो हाँ देखो कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल है तो ये ऑन टू भी होगा। हाँ हाँ मैडम, हाँ। आ गया समझ में? तो ये पहली फिगर 1 1 है, ऑन टू नहीं है। ए 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। दूसरी थर्ड नंबर 1 1 नहीं है बट ऑन टू है, पर ये फोर्थ नंबर 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अंडरस्टैंड? हाँ हाँ बोलते हो पर करते नहीं हो कुछ भी। चलो अब एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। मैंने अभी 2 क्वेश्चन करवाए थे ना, दिख रहा है ये 2 क्वेश्चन के रिलेटेड सेम टू सेम क्वेश्चन है। आपको ये फिगर या तो प्रूव ही करना है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये ऑन टू है बट 1 1 नहीं है। आपको बनाओ इक्वेशन और चेक करो कि पॉसिबल है नहीं। और आप यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को आपको चेक करना है 1 1 है या ऑन टू है। ओके? होमवर्क में अगर ना हो तो मुझे एक बार बोल देना। कैसे करेंगे? ये पहला क्वेश्चन देखो, फंक्शन n टू n और f ऑफ x गिवन है x स्क्वायर। अब इसको इस इक्वेशन में देखो, यहाँ n टू n है, f ऑफ x की जगह x स्क्वायर। अब आप n में से एलिमेंट लोगे, x स्क्वायर निकालोगे तो डोमेन, कोडोमेन, फंक्शन और रेंज मिल जाएगी। इसको यूज करके देखो 1 1 है या नहीं है। आपको अगर ऑर्डर पेयर मिल जाए, कोडोमेन, डोमेन और इसका रिलेशन मिल जाए तो फिगर बनाओ, आप आराम से पता लगा सकते हो कि 1 1 है या ऑन टू है। देखोगे, वर्क करोगे तभी पता चल जाएगा। तो आपका ये होमवर्क, ये चारों की चारों क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। ये 6 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में गिनने हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट ये आता है हमारा थर्ड 1 1 ऑन टू। उसके बाद आया हमारा थर्ड टाइप, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी का मीनिंग क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स कि आप उसकी वैल्यू रखो कोई भी सेट में, वही मिलेगी। एक की इमेज एक ही होगी, 2 की इमेज 2 होगी, 3 की इमेज 3 होगी। ओके, फंक्शन की वही वैल्यू मिले तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब सेट ऑफ एलिमेंट आपको क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? सिर्फ इतना ही, आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन और रेंज बोलो क्या होती है। आपको इस क्वेश्चन को ऐसे रटना नहीं है, सिर्फ समझना है।
आइडेंटिटी फंक्शन को समझने के लिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है। आप भी ग्राफ की मदद से चेक कर सकते हैं कि डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी। अभी मैंने डोमेन और रेंज तो आप लोगों को समझा दिया है। ओके, डोमेन किसको कहते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं। यहाँ आर से आर क्यों लिखा वो भी आपको बता देती हूँ। देखो, अभी पहले दूसरी स्लाइड पे देखो, यहाँ मैंने एक ग्राफ बनाया। ये वही ग्राफ है जो यहाँ दिखा है ना इस स्लाइड में, वही ग्राफ है, पर कुछ अलग नंबर लेके मैंने बनाया है। तो देखो, इस ग्राफ में मैंने x की कुछ वैल्यू ली, थोड़ी पॉजिटिव ली, थोड़ी नेगेटिव ली और जीरो लिया। नंबर लाइन पे जैसे हम चलते हैं ना ऐसे। सिमिलरली हमने x की वैल्यू f ऑफ x में रखी। आइडेंटिटी फंक्शन में f ऑफ x क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x। x जो होगा ना वही f ऑफ x मिलेगा। देखो, यहाँ x की वैल्यू 1 रखो तो f ऑफ x क्या मिलेगा, 1। x की वैल्यू 2 रखो तो f ऑफ x मिलेगा 2। तो इसी तरह मैंने यहाँ सारी की सारी वैल्यू फाइंड की है, बिकॉज f ऑफ x क्या है, पहले ही हमारे फंक्शन आइडेंटिफाई है, इसलिए x1 लिया तो f ऑफ x पे क्या मिला, 1। x2 लिया, सिमिलरली f ऑफ x मिला 2। ऐसे सब भी नंबर लिए, पॉजिटिव नंबर है तो सामने वही मिला, नेगेटिव नंबर लिए तो भी सामने वही मिला, और जीरो लिए तभी। अब इस सब को मैंने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया। आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना तो आता ही है, आता है ना सबको। अब इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हाँ, तो देखो, हर एक नंबर लेती हूँ मैं। आप कहीं से भी स्टार्ट करो, योर चॉइस से। एक एक्सिस से जो हॉरिजॉन्टल है, और ये जो वर्टिकल है वो वाई एक्सिस है। हर बार ऐसे ही ग्राफ में होता है, एक्स एंड वाई। अब देखो, पहला पॉइंट हम अभी मिडल से स्टार्ट करते हैं। आप 1 1 से 1 के साथ 1, तो देखो 0 के साथ 0, तो पहला पॉइंट हुआ। यहाँ दो दो के गैप लेके बने तो यहाँ मिडल में ही 1 होगा ना, तो A1 यहाँ, A1 यहाँ। सिमिलरली 2 के साथ 2, यहाँ 3 होगा, 3 के साथ 3। अगर 4 लो तो 4 के साथ यहाँ 4 आएगा। उसी साइड ये नीचे दिख रहा है। अब मैं 0.5 लू x की वैल्यू, तो f ऑफ x क्या मिलेगा, अगर x की वैल्यू में 0.5 लू तो f ऑफ x क्या मिलेगा, 0.5 वही नंबर मिलेगा ना, कोई चेंज नहीं। आइडेंटिटी फंक्शन को पहले ही डिफाइन किया है कि f ऑफ x क्या मिलेगा, x ही मिलेगा, जो भी आप x लोगे वो। तो अगर मैं x की वैल्यू -8 लूं तो मुझे f ऑफ x क्या मिलेगा, -8 ही मिलेगा। मीन्स x की मैं जो भी वैल्यू लूं r में से, पॉजिटिव लूं, नेगेटिव लूं, रेशनल नंबर लूं, इरेशनल नंबर लूं, कुछ भी ले लूं, मुझे उसकी इमेज वही नंबर मिलेगी। क्लियर, ये आइडेंटिटी फंक्शन। तो हम R में से, डोमेन में से कोई भी एलिमेंट ले, R में से, उसके सामने उसकी रेंज क्या मिलेगी, वही मिलेगी। तो ये आपकी डोमेन और ये आपका रेंज। आ गया समझ में। आपका फंक्शन कहाँ डिफाइन है, R से R पे है। अब रियल नंबर की बात करेंगे तो आपके लिए ये इसकी डोमेन है, ये इसकी रेंज है। अब कोई ऐसा बच्चा है जिसको पता ना चला कैसे इसकी रेंज हुआ, डोमेन मैंने R से R लिखी। आप निकालेंगे फंक्शन, अभी हमने जो भी एग्जांपल देखे थे इस टाइप से। आप डोमेन में एलिमेंट लिखेंगे, कुछ भी R में से ले लो, और डोमेन के भी कुछ भी ले लो, बिकॉज R से R का फंक्शन है। अब रेंज क्या मिलेगी, जो आपने से R में से उठाया वही इमेज R नेक्स्ट में मिलेगी। तो यहाँ डोमेन और रेंज R है। आ गए समझ में आइडेंटिटी फंक्शन की। चलो, आप लोगों के लिए एक वर्क है आज का, सबसे इम्पोर्टेंट। सुनो सब, ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को ऐसे बोल के समझाई,
अब आप लोगों को इस क्वेश्चन को ऐसे लिख के मुझे देना है। कैसे? ऐसे लिख के देना है। कैसे लिखेंगे? देखो, इस क्वेश्चन में फंक्शन r से r का है, दिख रहा है, और f ऑफ x की वैल्यू क्या गिवन है? सिर्फ x। r में से तो कितने सारे एलिमेंट होते हैं, आप कोई भी 5-6 एलिमेंट ले लो। r से r का है तो दूसरा r लिखने की जरूरत नहीं है, f ऑफ x में रखो, उसकी वैल्यू वही मिलेगी। डोमेन और कोडोमेन बोल लो, जितने आपने एलिमेंट लिए हैं वही डोमेन और कोडोमेन इक्वल हो गए। फंक्शन बनाओ, 1 लिया तो उसके साथ क्या आया, 2 लिया तो उसके साथ क्या आया, उसके रेडियस की रेंज बनाओ, तो देखो रेंज है, पिछला एलिमेंट आएगा सब में, तो इतना मिल गया। तो आपको तो सिर्फ डोमेन और रेंज ही चाहिए, ये मिल गई। हो सकता होगा आप लोगों से। ओके, चलो अच्छी बात है। आइडेंटिटी फंक्शन की तो मुझे ऑर्डर पेयर बताओ। चलो, आइडेंटिटी फंक्शन की तुम ऑर्डर पेयर बताओ मुझे। मैंने आर लिया सेट में, आर की वैल्यू मैंने कुछ भी रख दी, कुछ भी आपकी चॉइस की ले लो, बिकॉज आर में तो कितने सारे नंबर होते हैं ना। तो एफ की ऑर्डर पेयर क्या बनेगी, इस फंक्शन की ऑर्डर पेयर क्या बनेगी आपके पास? कोई आंसर देगा? कोई बात नहीं, गिन के बताना। आप लोग आज ये होमवर्क, पहला तो क्वेश्चन मुझे सब व्हाट्सअप करेंगे मैम, सारे के सारे बच्चे जितने भी यहाँ। हाँ बोलो ना। ऑर्डर છે 2468 हाँ અને આપણે हाँ, इस क्वेश्चन में અને પેર પણ છે 224466। सिर्फ एक मिनट। हाँ 2 मिनट, ये नंबर देती हूँ ना तो आपको पता चले। ये देखो एग्जांपल, ये आपका x है ना, ये डोमेन है, ये y है, एक और डोमेन है। मैंने इतने लिए, ओके। मैं बहुत सारे नंबर नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे ग्राफ बनाने में आसानी हो इसलिए। तो भाई अपने आप को अनम्यूट करो। तो ये x है, वो डोमेन है, ये दूसरा है, एक और डोमेन है। तो मैंने x में से कोई भी एलिमेंट लिया तो सामने उसकी इमेज वही मिली, इसको मैंने ग्राफ में रखा। इस लोगों का मैंने ऑर्डर पेयर बना दिया। तो ऑर्डर पेयर क्या होगी? 1 1 2 2 3 3 0 2 0 -1 -1 -2 -2 -3 -3। अब उसके ऊपर से आपको उसकी रेंज निकालनी है, तो रेंज तो क्या होगी? वही एलिमेंट होगी ना, जितने आपने ले उतने आपको उसकी रेंज में मिलेंगे। तुमने आप लोगों ने पूरा आर ले लिया। કરવાના કેટલા? ये पहले कौन अनम्यूट करो, तो कौन बच्चा अपना माइक ऑन कर रहा है? મેડમ તમારે लोग। हाँ बोले। ક્વેશ્ચન જે આપણે કરે તમે કીધું ને ગણવાનો અને WhatsApp કરવાનો એક જ, ઈ કયો આ ગ્રાફ આ એક જ બતાવ્યો ઈ question. પહેલો ક્વેશ્ચન કે એના પછીનો? हाँ हाँ नहीं, आइडेंटिटी फंक्शन। आज मैंने ये क्वेश्चन में आपको गिन के दिया है, दे दिया। ओके, आप लोगों को इस क्वेश्चन को, आइडेंटिटी फंक्शन वाले क्वेश्चन को आपको ऐसे गिन के मुझे देना है। રેડી, આ ગણના इसके की लिए ને आप ये ग्राफ यूज करो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, ये देखो x के मैंने इतने एलिमेंट्स लिए हैं। x को पहले सेट को कहते हैं डोमेन, दूसरे को कहते हैं कोडोमेन। हाँ, ओके, हाँ। 1 लेने से ये 1 ही आता है, 2 लेने से 2, तो एक डोमेन की वैल्यू हो गई, एक कोडोमेन की वैल्यू हो गई। उसके बाद मुझे बनाना है फंक्शन की ऑर्डर पेयर। तो 1 के साथ 1 रिलेटेड है, 2 के साथ 2 रिलेटेड है, एंड सो ऑन। मैं कोई भी नंबर लूं उसके साथ वही एलिमेंट रिलेटेड होगा। હા ओके, मैं 10 लूं तो 10 सामने 10 ही मिलेगा,
मैं 5000 लूँ तो उसके सामने 5000 ही मिलेगा, मैं 1/2 लूँ तो उसके सामने मुझे 1/2 ही मिलेगा। ओके, तो मैंने ऐसे ऑर्डर पेयर बना ली और उसके बाद उसकी रेंज लिखी। रेंज क्या होती है? कोडोमेन की वैल्यू। तो ये सब की सब आएगी ना। हाँ तो इसलिए हम ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर मैं डोमेन में आर लूँ तो सामने हमें रेंज भी आर ही मिलेगी। तो ये हमारे गणतरी કરીને देवानी। ये क्यों आई है आपको? हाँ हाँ, तुम लोगों को ये करना है। लेक्चर चालू છે। ओके, હા અને આ ચલો ક્વેશ્ચન નેક્સ્ટ, બી અપલોડ જ છે ધ ને? સેકન્ડ ફંક્શન। આ રહ્યું અપલોડ અપલોડ એટલે? છે? અમે ગમે એ વેલ્યુ લઈ શકી કે આજ લેવાની એમ કહું અપલોડ છું? એટલે ગમે 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 એટલે તો કહું છું। આ તો મેં તમને ખાલી બતાવ્યું, તમે અલગ લેશો તો મને રિયલમાં પ્રાઉડ ફીલ થશે કે તમે સમજી ગયા। Yeah. You can take another value na, if you can understand then take another anything। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन। आ सेकंड क्वेश्चन ની અંદર इज अ सेकंड फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन भी हमने आर से आर पे डिफाइन किया है। कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। सी दैट्स मीन कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ उसकी डोमेन आर है, इसकी रेंज सी है। क्यों है मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाती हूँ। देखो नेक्स्ट ग्राफ, मैं आर की वैल्यू एक्स की वैल्यू आर में से लूंगी, कुछ भी लूंगी। मैंने ऐसे ही पहले जो ली थी ना वही ली, चेंज नहीं किया। तो मैंने एक्स की वैल्यू आर में से थोड़ी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो ले ली। उसके सामने मुझे एफ ऑफ एक्स क्या मिलता है? एफ ऑफ एक्स यहाँ डिफाइन है। एफ ऑफ एक्स क्या लिखना है? सी। सी माने कोई भी कांस्टेंट, कुछ भी। यहाँ मैं कांस्टेंट की वैल्यू 3 ले रही हूँ, मुझे 3 चाहिए तो मैं कुछ भी कांस्टेंट लिख सकती हूँ। कांस्टेंट कोई भी लिखो, 5 6 7, पर एक ही होना चाहिए, चेंज नहीं कांस्टेंट में। आप 3 लो, 4 लो, 0 लो, आपकी चॉइस। कांस्टेंट एक ही नंबर, बार बार चेंज नहीं होगा। तो कांस्टेंट मैंने एफ ऑफ एक्स इज 3 ले लिया, तो 1 रखा तब भी 3 आया, 2 रखा तब भी 3 आया। कुछ भी नंबर रखो सामने मुझे 3 ही मिलता है, बिकॉज हमारा ये फंक्शन है कांस्टेंट। सी कुछ भी लो, बिकॉज अगर एक्स होता ना तो चेंज होता, तो एक्स की वैल्यू कुछ अलग होती तो हाँ सामने कुछ फंक्शन में चेंज होता। बट यहाँ तो एक्स ही नहीं है उस फंक्शन में, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये मेरा ग्राफ बन गया। तो मुझे मिला डोमेन। डोमेन क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव जीरो रेशनल इरेशनल कुछ भी। सामने कोडोमेन में तो क्या आता है? सिर्फ 3 ऐसे 10 बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखते हैं, तो 3 ही मिला। उसके बाद ऑर्डर पेयर, तो 1 3 2 3 3 3 0 3 कुछ भी नंबर उसके साथ 3, तो ऑर्डर पेयर मिल गई। उसके बाद आती है उसकी रेंज। तो रेंज क्या होगी? सिर्फ 3 ही। ओके, तो आपको तो डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो डोमेन आर में से कुछ भी लो, सामने वही कांस्टेंट रेंज में आता है। तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन में डोमेन में से कुछ भी आर में एलिमेंट लो, बस उसकी रेंज तो क्या मिलेगी? वही कांस्टेंट नंबर जो आपने लिया होगा। यहाँ मैंने 3 लिया है, आप अगर ग्राफ बनाओ तो 5 लो, 6 लो, माइनस लो, कुछ भी लो, कोई भी रेशनल नंबर लो, कोई भी रेशनल नंबर लो। तो ए इसकी डोमेन, ए इसकी रेंज। आ गया समझ में? कितने बच्चों को एक क्वेश्चन समझ में आ गया? आ गया मैम समझ में। क्लियर मैम? सबको? यस मैम। अरे इतने सारे क्लियर? पक्का? हाँ अच्छी बात है। आई रियली प्राउड कि कल तो आप लोगों को पता नहीं चल रहा था, आज आ गया समझ में, बहुत बात अच्छी है। तो आप लोगों को भी होमवर्क में व्हाट्सएप में मुझे क्या करना है वो आप देख लो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इस फंक्शन की मैंने डोमेन और रेंज आर लिखी है। आप ये ग्राफ बनाएंगे, आप
ये इस ग्राफ ऐसा ग्राफ बनाएंगे पर नंबर कुछ भी लेंगे, मैंने लिए है वो तो नहीं, कुछ भी उस पे आप इसकी डोमेन डिसाइड करेंगे, कोडोमेन डिसाइड करेंगे, इसकी पेयर बनाएंगे, उसकी रेंज फाइंड करेंगे। पक्का? आइडेंटिटी फंक्शन। और सिमिलरली आप यहाँ भी कांस्टेंट फंक्शन के लिए भी यहाँ आर से आर का है तो आप इसी तरह का इसका ग्राफ बनाएंगे, कुछ वैल्यू लेंगे, इसके सामने कोई एक फिक्स वैल्यू मिलेगी। यहाँ मैंने 3 लिया है तो जरूर नहीं कि आप 3 ही लो, कुछ भी लो, 1.5 ले लो, 2 ले लो, नेगेटिव नंबर ले लो। आपको ऐसे इसका ग्राफ बनाना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और ये ग्राफ है ना, वैसे देखो तो एक वेन डायग्राम ही है पर इसको भी ग्राफ के फॉर्म में लिखा है तो आपको इजी पड़े। तो सेट ए है, ए सेट बी है, इसकी ऑर्डर पे मिल गई, इसकी रेंज मिल गई, आपको तो सिर्फ डोमेन और रेंज ही फाइंड करनी है। तो ये 2 क्वेश्चन को आप लोगों को व्हाट्सएप करने हैं, हो जाएगा? करना ही है, चलो हो जाएगा नहीं? ओके, ये भी 2 मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मत करना, पर्सनल नंबर पे करना। ओके, ग्रुप में बहुत सारे आप लोग भेज देते हो, एक के साथ दूसरा फिर ऐसे हो जाता है, तो हर एक बच्चा अपना पर्सनली ही मुझे देगा। ओके, अब चलो प्रेजेंट में ध्यान दे दो। उदय 11 नंबर। यस मैम। एक बार ऑन होने के बाद ऑफ हो जाते हो। चलो उदय। जयेश 5 नंबर। सौम्य जोशी 10 नंबर। कोई छूट गया हो तो, अगर कोई छूट गया हो तो अपना नाम लिख लो चैट बॉक्स में। 10 नंबर। नंबर 19। ओम 20 नंबर। गुड्डू। अब कौन? सोनू अभी। हाँ, लेटर कंप्लीट होने के बाद गुड्डू 33, सहदेव 8, प्रिंस 16, अमित 24, कमलेश 28, प्रेजेंट मैम। अमित कुमार 24, जेनिस गजेरा 14 नंबर, कोठारी पार्थ 9, केविन 13, अनीस 26, परम 1, आर्य 30, गुड्डू 33, जेनिस 14। 2 बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है। जयराज 4 नंबर। ओके, जयराज एक्सप्लेन अमित कुमार। अमित कुमार कौन है? अमित कुमार यादव। बच्चा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था वो टाइम से? आ गया अभी समझ में? मैम 72 सोनू। मुझे मैसेज मत करना, अपने आप को अनम्यूट कर देना, बिकॉज मैं बार बार मैसेज नहीं देखती तो कभी पता भी नहीं चलता कि आप लोगों को समझ में आया क्या नहीं आया। मैम 72 सोनू। अदरवाइज तो आप अब लिख लिया। हेलो मैम 72। जेनिस 40 नंबर 72 का 27, 19 नंबर, सोनू 22, अमित 20। चलो कोई बाकी है छूट गया हो तो लिख लो अपने चैट बॉक्स में, जितने का नंबर चैट बॉक्स में होगा वही की प्रेजेंट लूंगी मैं। तो आपके लिए ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में है, आपको अच्छी तरीके से उसका वेन डायग्राम बनाना है, ग्राफ बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज और ऑर्डर पैक इतनी लिखनी है। ओके, और हमारा फंक्शन आर से आर पे ही है। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में मिलेंगे। अरे गुड्डू बोल
बोल। क्लास खत्म हो गई ना। अरे हाँ। जानते रहे हमारा नेट खत्म हो गया तुरंत अभी फोन करके दोस्त मेरे को तुरंत फ्री करे लगे यार अभी तुरंत अच्छा वाला को अटेंडेंस मिल गई। कमलेश। कहाँ नहीं हाँ हाँ अनिल हाँ तब बोलो कहाँ ना। चल रहा है? हाँ ठीक बा। अरे फोन नहीं करते यार नंबर वंबर नहीं है तुम्हारा मेरे पास यार सेंड कर देना ना मेरा नंबर नहीं करके कमलेश है। मोबाइल क्या फोड़ दिए मोबाइल को फोड़ दिए। ये क्या है ठीक है ठीक है निश क्या फोड़ दिए। अरे ऐसे गुड़ा में फोड़ दिए। कमलेश भाग गए है ना। चलो ठीक है चलते हैं हम भी। गुड्डू ठीक है हाँ ठीक है। बोलो। एक मिनट हाल से करूँगा। और क्या गुड्डू है गुड्डू। हाँ बोलो। ठीक है ना और सब। सब ठीक है। तो तब ठीक है निकलते हैं।